آپ کو بتائیں کراچی میں کرونا وائرس کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ 2558 افراد نے کرونا کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 37.23% ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 6871 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2558 افراد نے کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 37.23% ریکارڈ کی گئی۔ وبا کی شرح میں کمی آنے کے باوجود خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ شہری ماسک لازمی استعمال کریں۔ شہر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ضلع جنوبی کے 3 سب ڈویژنز میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ تفصیلات جنید فیروز کی رپورٹ۔ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 37.32% رہی۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3180 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 2831 کیسز کا تعلق کراچی سے ہے۔ کرونا وائرس میں شدت اور پھیلاؤ میں تیزی کے سبب کراچی کے ضلع جنوبی کے 3 سب ڈویژن میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 سب ڈویژن، گارڈن، صدر اور سول لائن کے مخصوص مقامات پر مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی سفارش پر لگائے گئے لاک ڈاؤن کے بعد ضلع انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ اداروں کو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ ساتھ 3 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ شہر قائد میں کرونا کیسز اضافے کے باوجود شہریوں نے SOPs کو ہوا میں اڑا دیا۔ شہریوں کی اکثریت نے مہلک وائرس کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی میں کورونا کا مہلک وائرس ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگا۔ شہر میں کورونا کیسز کی شرح 37.23% ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ کیسز کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے ہیں۔ کیس زیادہ رپورٹ ہونے کے باوجود مارکیٹوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر شہریوں نے احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی ہیں۔ نہ تو کیا ماسک کا استعمال اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ شہریوں نے مہلک وائرس کے وجود سے ہی انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کورونا کا وجود ہی نہیں تو احتیاط کیوں کریں۔ حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے صرف اعلانات کے بجائے عملی اقدامات کریں تاکہ عوام کو مہلک وائرس سے بچا لیا جائے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں عملے نے ایک بار پھر کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ویکسین نہ لگانے پر خاتون شہری کی ڈاکٹر سے کلامی اور پھر ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث ویکسینیٹرز اور ڈیٹا انٹری آپریٹر نے کام چھوڑ دیا ہے۔ تفصیلات ربیہ خان کی رپورٹ میں۔ شہر کے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں کام بند، ویکسین کا عمل رک گیا، شہریوں کی ہنگامہ آرائی۔ خاتون شہری غصے میں آ گئی، ڈاکٹرز کے روم میں داخل ہو کر شور شرابہ کیا۔ ڈیٹا انٹری سٹاف نے شہر کے تمام ویکسینیشن سینٹرز بند ہونے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کراچی کے ابھی تک کسی بھی سینٹر کے اندر جو ہے نا تنخواہیں فراہم نہیں کی ہیں، اور صرف IT کی نہیں، نرسنگ بھی ہے اس میں، اسکاؤٹ بھی ہے اس میں۔ یہ 3 ادارے ہیں اور تینوں کو انہوں نے سیلری نہیں دی ہے۔ اب اگر ایک ساتھ اسٹرائک میں آئیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر ویکسینیشن سینٹرز بند ہو جائیں گے۔ تقریباً 9 ماہ سے IT والے ہیں، ہم لوگوں کو بھی تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے، 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا، سب ایک دوسرے پہ ٹوپیاں دے رہے ہیں، کوئی صحیح بتا نہیں رہے۔ ویکسین لگوانے آئے شہریوں نے بھی حکومت سے ویکسینیشن اسٹاف کے مسائل کو فوری حل کرنے کی اپیل کر دی۔ ان کو تو فیسیلیٹ کریں نا، تو یہ تو آگے جا کے کام کرنے، ورنہ اس طرح سے ہم 85 لوگ کوئی دفتر سے چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی سے چھوڑ کے آ رہا ہے، یہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلا یہ اسٹرائک کر رہے ہیں۔ اگر انہی لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہوں گے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہوگی؟ ہم آئے ویکسینیشن لگانے کے، ہمیں بوسٹر لگانا ہے، ان کی ہڑتال چل رہی ہے، ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی، ان کی پیمنٹ کون کرے گا؟ ویکسین نہیں لگ رہی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیماری کی حالت میں بھی اٹھ کے آ رہا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہے۔ یہاں کی صورتحال بہت بری ہے، ہم اسٹوڈنٹس اور انہوں نے ہمیں ویکسینیشن لگوائی۔ رات کو بھی آئے تو ہمیں یہاں پہ یہ کہا ہے کہ صبح جانا، تو ہم لوگ صبح آئے تو ابھی یہاں پہ اب نہیں اسٹرائک چل۔ ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں روزانہ 1500 سے 2000 افراد کو ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگائی جاتی تھیں۔ کیمرامین مطہر حسین کے ہمراہ ربیہ خان، سٹی 21۔ کراچی میں 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے مہم کا افتتاح کیا۔ عذرا پیچوہو کہتی ہیں کہ آج عام آدمی پریشان ہے، صوبائی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ صحت کی سہولیات کو مزید بہتر کرے۔ کراچی سمیت سندھ کے 20 اضلاع میں اس سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ 20 اضلاع میں 58 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، جس میں کراچی کے 20 لاکھ سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ خالد جمیل اسپتال گارڈن ایسٹ انسداد پولیو مہم کا افتتاح صوبائی وزیر عذرا پیچوہو نے کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چلڈرن اسپتال NGO کو دینے کا تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا۔
जो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ये जो हड़तालें हैं इनको पैसे बर वक्त दिए जाएं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 89 डेज़ के लिए हम देते हैं और जैसे वो ख़त्म होता है उसका जो प्रोसीजर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़ा मुश्किल है, बहुत देर से होता है। तो हम कोशिश करें कि उसको अभी इस तरीके से करें कि फ़ौरन ऑटोमेटिकली वो पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होते जाएं DHOs के पास, ताकि वो लोगों को तक पहुंच सकें जो हमारे वॉलंटियर्स वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, नॉर्थ कराची की जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं थी उनकी कारकर्दगी से। सूबाई वजीर ने कहा कि अगस्त 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 माह बाद पोलियो मुहिम चलाने से केसेस में कमी आ गई है, ताहम महंगे इलाज से आम आदमी परेशान है। सिंध में जुलाई 2020 से अब तक एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं किया गया और सीवरेज का पानी भी जुलाई 2021 से पोलियो वायरस से पाक है। 2021 में पाकिस्तान में एक पोलियो केस रिपोर्ट किया गया है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अभी आपको बताएं, कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के तहत बल्दियाती कानून के खिलाफ 25वीं रोज भी धरना जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि इस शहर का मेयर बाइख्तियार हो, इस शहर में अब लिसानियत की सियासत किसी को करने नहीं देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने को 25 रोज मुकम्मल हो गए। कारकुनान का अज़म और जोश हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगा। धरने के शुरुआत से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि माजी में महाजिर और सिंधियों को लड़वाने की कोशिशें की गयी, लाशों की नाकाम सियासत एक बार फिर करने की कोशिश की जा रही है। जिन्होंने हमें लड़ाया, जिन्होंने महाजिरों और पख्तूनों को लड़ाया, जिन्होंने महाजिरों और सिंधियों को लड़ाया, जिन्होंने कौमों को कौमों के मुकाबले में लाकर खड़ा करके तासुबात फैलाए, और जब चिराग बुझने लगता है तो थोड़ा सा फड़फड़ाता है, फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मरतबा फिर ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर पख्तूनों को पख्तून बना दे, महाजिरों को महाजिर बना दे, सिंधियों को सिंधी बना दे, आपस में एक दूसरे से लड़ा दे। हाफिज नईम ने मजीद कहा कि हमारा मुतालबा है कि आइन के तहत मेयर बाख्तियार हो, पानी का निजाम मेयर के पास होना चाहिए। अफसोस के बुनियादी हुकूक के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। लोगों को इख्तियार दें। हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम न पार्टी के लीडर के खिलाफ न पार्टी के खिलाफ, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमें हक दिया जाए। आप नाक बन के न बैठे, और इंशाअल्लाह हम ये इस काले कानून को खत्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप परेशान ना हो, आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इससे कबल जमात इस्लामी के कारकुनान ने रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद की सरबराही में टावर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के शुरका ने सिंध हुकूमत से बल्दियाती बिल वापस लेने का मुतालबा दोहराया। कैमरामैन शेर फराज के साथ दानियल सैयद, सिटी 21। स्टेट बैंक ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि रवा माह महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा, लेकिन आगे चलकर महंगाई की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी से माली खसारे में कमी होगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरकजी बैंक ने 2 माह के लिए शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया है, जो गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी बयान में फराहम करदा मुस्तकबिल की रहनुमाई के मुताबिक है। तो सबसे पहले आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला ये किया कि जो पॉलिसी रेट है उसको 9.75 पर ही बरकरार रखने का फ़ैसला किया, और साथ साथ उस वक़्त मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फॉरवर्ड गाइडेंस ये दी थी कि नियर टर्म में, यानी कि मुस्तकबिल करीब में, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देख रही थी कि मज़ीद जो है पॉलिसी रेट को बढ़ाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, और आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ऐसा ही फैसला हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि कलील मुद्दत में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, लेकिन आगे चलकर इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। जो हमारी महंगाई की प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए, यानी कि अभी तो थोड़ी बहुत जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर, वो तो थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरीली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, तेल की कीमत और बाकी दीगर अशिया की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। लेकिन इससे अगर हम आगे थोड़ा सा देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली जो हमारी महंगाई की प्रोजेक्शन है वो थोड़ी कम हुई है। रजा बाकर ने कहा कि नवंबर से करंट अकाउंट खसारा बढ़ना रुक गया है। मिनी बजट से करंट अकाउंट खसारे में मजीद कमी आएगी। कैमरामैन फरहान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ
ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 180 रुपए पर जा पहुंचा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान, तलब बढ़ने पर डॉलर की खरीदारी से रुपया कमजोर हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की अदायगी और तेल की कीमत बढ़ने पर डॉलर की तलब देखी गई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 180 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत का फर्क बढ़कर 3 रुपए 51 पैसे तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में यूरो 5 पैसे बढ़कर 201 रुपए 50 पैसे और पाउंड 242 रुपए 50 पैसे पर बरकरार रहा। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने और डॉलर की कीमत बढ़ने पर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 350 रुपए महंगा होकर 1,26,350 रुपए पर पहुंच गया है। मकामी सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ने और आलमी मार्केट में सोना महंगा होने पर फी तोला सोना 350 रुपए महंगा होकर 1,26,350 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 300 रुपए महंगा होकर 1,08,325 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $2 महंगा होकर $1838 फी औंस पर पहुंच गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को पकड़कर वापस मुल्क में लाएं। महंगाई से पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई, लेकिन यहाँ मसनूई महंगाई भी की गई। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सूबे के साथ ज्यादती की जा रही है। अगर सूबाई हुकूमत के पास गंदुम नहीं तो लिखें, 48 घंटों में गंदुम फराहम करेंगे। और अगर सिंध हुकूमत के पास वाक़तन गंदुम नहीं है, वो समझते हैं कि उनके पास शॉर्टेज है, तो वफाकी हुकूमत को लिखें, हम पास्को से आपको गंदम रिलीज करा के देते हैं 48 घंटे के अंदर, जितनी गंदम आपको चाहिए सिंध के लिए। एहतसाब के अमल पर उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को पकड़कर वापस लाएं। हमने नैब को केस बनाकर दिए जो अदालतों में चल रहे हैं। हमने पूरा बना के नैब को दिया है, अदालतों में चल रहा है। अब जाहिर है कि अदालतें अपना टाइम लेती हैं। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि पकड़ के उल्टा टांगे और दुरे लगाएं तो पैसे गिरना शुरू हो जाएं। वो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आने वाले हैं, पता नहीं आने वाले हैं कि नहीं। मैं तो खान साहब ये कह रहे हैं कि इसको पकड़ के वापस पाकिस्तान लेकर आए इंटरपोल के जरिए। ये तो मफरूर हैं। मुल्क की सूरत हाल पर बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इमरान खान को किसी तहरीक से खतरा नहीं, अपोजिशन सिर्फ तारीखें देती है। इमरान खान जब चाहे सबसे ज्यादा लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं। ये तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है। ये कहीं नहीं, किसी को कोई ऐसी मूवमेंट मैं नहीं देख रहा कि ऐसी मूवमेंट हो जिससे इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा लाक हो। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अगर अवाम को सड़कों पे लाने की बात हो तो इमरान खान से ज़्यादा अवाम सड़कों पे कोई नहीं ला सकता। पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से इमरान इस्माइल ने कहा कि मालूम नहीं कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाएंगे। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बुध को शहर के 5 अहम मकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। मुतनबा किया है कि हम सेक्रेटेरिएट को बंद करने का ऑप्शन भी रखते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हर यूनियन काउंसिल के फंड्स यकसां और ज़्यादा होने चाहिए, हमें खैरात नहीं हक चाहिए। आप अगर कराची के अलावा हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए देते थे और ज़ाहिर है कि अब डेफिनेटली उसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो इसका भी मुतालबा करता हूँ कि वो फंड जो 5 लाख रुपए यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल में, चाहे वो अंदरूनी सिंध में आता हो, सिंध के दीगर अर्बन इलाकों में आता हो, रूरल इलाकों में आता हो, वो नाकाफ़ी है। लेकिन पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर, बराबरी की उसूल की बुनियाद के ऊपर ये फ़ंड्स की तकसीम होनी चाहिए और कराची की यूनियन कमेटियों को आबादी के तनासुब से रेगुलर अखराजात के पैसे मिलने चाहिए। तो हमारा ये वाज़ेह मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर कायम किया जाए और इसमें मेयर का रोल होना चाहिए, उसका मेंबर भी होना चाहिए और उसका अहम तरीन रोल होना चाहिए। और जितने भी, और बुध के दिन शहर के 5 अहम तरीन मुकामात पर हम धरना देंगे और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस पर मुतवज्जे होगा। हम अपने कारकुनों से और धरने के शुरका से ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंसों को बस रास्ता देना है और बाकी हम आवाम से अपील करते हैं कि हम ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये 3.5 करोड़ लोगों की बेहतरी का इक़दाम है। हमने सेक्रेटेरिएट को अभी तक नहीं बंद किया है, हम ये ऑप्शन रखते हैं कि इसको बंद कर दें, चूँकि हमने अपना एक तरीक़ेकार तय किया है कि ये धरना मरकज़ और पूरे कराची के अंदर तहरीक
पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क गिर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का इनेकाद हुआ। कराची में मुनक़दा रैली में सईद गनी समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की और जोशीले अंदाज में खिताब किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील पर किसानों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया गया। कराची में मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली गईं। मलिर सलमान टावर, गडाब, इब्राहिम हैदरी, बल्दिया टाउन से निकाली गई ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च शायरा कायदीन पर जमा हुई। इस मौके पर शर्मिला फारूकी, सादिया जावेद व दिगर खवातीन ट्रैक्टर पर सवार होकर मुनफरिद अंदाज में नारे लगाते दिखाई दी। मार्च के दौरान सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी और वकार मेहदी ने अपने खिताब में किसानों के मसाइल हल कराने के अज़म का इजहार किया। बोले, कराची में किसानों का एहतजाज विफाकी हुकूमत की ज़री पॉलिसी पर अदम एतमाद है। जो यूरिया की क्राइसिस हुए हैं, यूरिया की कमी हुई है, जिससे पूरे मुल्क में किसान परेशान हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, उनके लिए यह एहतजाज रखा है। और कराची शहर में जो किसान हैं, जो ज़रई ज़मीनें हैं, वो सिर्फ जिला मलीर में है। आज का ये जो भरपूर एहतजाज है, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के किसान हारी जमींदार शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के एमएनए आगा रफीउल्लाह और एमएनए शाहिदा रहमानी का कहना था कि मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ किसान भी खाद की बहरानी सूरत-ए-हाल से परेशान हैं। आज की इस रैली का मकसद किसानों के साथ इज़हार यकजहती करना, क्योंकि आप देखें इस वक्त मुल्क में यूरिया नापैद हो चुका है, जबकि ये फसल के बोने का टाइम है और जब यूरिया नहीं मिलेगा तो फसलें कैसे होंगी। तो जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का किसान मार्च इनको हिला चुका है, तो आने वाला जो इस्लामाबाद मार्च से हम यहाँ से चले गए और वो वहाँ से चलेगा इंशाल्लाह। शहर कायद में निकाली गई ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में पीपल्स पार्टी के जियालों, किसानों, मजदूरों समेत खवातीन की बड़ी तादाद विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दिए। कैमरामैन इमरान खान के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21।